let's go to first question. Now, when we can see that in this question, it is telling that a metal sphere A is given a charge positive. That means a metal sphere A is given charge positive and a metal sphere B is given charge negative. My dear friends, can anyone tell me if a metal is charged given a charge positive, what does it mean? It means that some amount of electron is removed. That means from metal sphere A, some amount of electron is removed. And a sphere B is negative charge. That means some electrons is added. So you tell, my dear friends, which of the sphere, either A or B, will gain mass? Exactly, the sphere B will gain mass. That is answer C. Now, next question. Charging by induction. In this process, we know about induction. What is induction? We know that, suppose we have an object, neutral object, and we have to charge it. And for charging it by induction, we have to charge without touching it. We know that. Now, if we bring some charge, so let's suppose a positive charge or a negative charge, any charge, positive or negative charge. If we are bringing positive charge, then what will happen? It will happen that the neutral body, their polarization will occur. What is polarization, my dear friend? Polarization means separation of neutral charges. That means positive charge will attract negative charge and repel positive charge. So for induction, my dear friends, what is the need? We need that the object to be charged, it must have polarization properties. That is, separation of charge is possible. So yes, my dear friends, in which of the object separation of charge is possible? When we look at objective A, it is insulator, not possible. Semiconductor, although you don't know, but it is not possible here also. And in case of conductor, polarization is possible. So answer will be C. Fine. Now, third question. Here we can see that it is also a question of induction by charging. Now, we know, let's take that example, previous example. What we have seen in that, when we were charging this object, suppose we were charging this object by an object which is having positive charge. What happens? This positive charge has, suppose, charge Q, and when we are bringing that, it gets a charge positive and negative like that. And we know when we are charging by induction, then charge developed on the next object will be given by Q dash is equal to Q 1 by K minus 1. Now we know this Q dash will be always less than Q. This Q dash will be always less than Q, because we know that K is always greater than 0, always greater than 1, because it is 1 for air and infinity for conductor. So with this relation, we can say that Q dash is less than Q. That means Q dash by Q is less than 1. Now let's take the example. Option C. Now let's come back to next question. Here it is a numerical type question. We can see that what it is telling that in a 1 kg of atom, in a 1 kg of mass, sorry, it contains 4 into 10 to the power 20 atoms. This much atoms. Now, suppose it is telling that, we can see that it is telling that 1 electron is removed from each atom. That is, from this much of atoms, how much electron will be produced? From this much of atoms, this much electrons will be produced. We know that. क्वेश्चन कह रहा है कि एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इतने एटम से कितने इलेक्ट्रॉन निकालना है, इतना इलेक्ट्रॉन निकलेगा. अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट 1 ग्राम का है, वी कैन सी 1 ग्राम, अगर 1 ग्राम का ऑब्जेक्ट है तो 1 ग्राम ऑब्जेक्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4 into 10 to the power 17 electrons. Got it? Now it is telling that how much charge is, you can see that how much charge is gained.
this much electron is produced in one for 1 gram of mass. So we can say that अगर उसका चार्ज निकालना चाहे कि इस इतनी इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होगा, व्हाट वी विल डू, हम लोग 4 into 10 to the power 19 into charge of one electron 1.6 into 10 to the power minus 19, क्या आएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई 6.4 into 10 to the power, गॉट इट. तो आंसर क्या होगा हमारा, डी. कोई प्रॉब्लम, here it was 70, we can see, got it. कोई प्रॉब्लम किसी को, एनी प्रॉब्लम? Now let's come back to next question. अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन. हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी चार्ज का, सपोज ये हमारा ओरिजिनल सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज अपने चारों तरफ सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, वी नो दैट, ये हम जानते हैं. तो ये कह रहा है क्वेश्चन, किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी चार्ज के द्वारा, वो किस पर डिपेंड करता है. तो अगर ये आउटवर्ड डायरेक्शन में तो है, तो किसी भी पॉइंट पे मेजर करते हैं कैसे, वी नो बाय डेफिनेशन कि टू मेजर इन एट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, व्हाट वी डू, हम लोग उस पॉइंट पर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाते हैं. सपोज इस पॉइंट पे मेजर करना है, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ पर लाएंगे. What is unit positive test charge? It is only to measure electric field. So to measure electric field, the electric field at this point will depends only upon the source charge, neither upon test charge. Got it? Any problem? So it will depend upon source charge only. Okay. Now come back to the next question. Electric dipole moment. Electric dipole moment. We know that what is electric dipole moment. We know that suppose we have minus q and plus q. This is electric dipole. If it is electric dipole and separation is very less in electric dipole, two equal charges having very small distance between them, then it is called electric dipole. और इस electric dipole में you should remember that it is a vector quantity. Dipole moment, when we calculate dipole moment, it is a vector quantity p, that is qd, and it is directed from minus q to plus q. Got it? Now when we see electric dipole moment, it is a vector quantity and it is directed from minus q to plus q. So option will be C. Yes. Now next question. At a given distance from a center of dipole, the field intensity at an axial point is k times the field intensity at equatorial point. Now, let's come back to theory. We know that for a electric dipole, we know that to find electric field, we have formula P by 4 pi epsilon naught r cube under root 3 cos square theta plus 1. This we know. And we also know that for this, we also know that this is axial point. This is axial point. All the points lying in this is called axial point. And this is equatorial line. Got it? क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम किसी एक्सियल पॉइंट पर मेजर करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो किसी भी एक्सियल पॉइंट पर मेजर करना चाहेंगे तो सेंटर से अगर एक्सियल पॉइंट की तरफ वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो व्हाट विल बी द एंगल, थीटा विल बी 0 डिग्री. तो एक्सियल पॉइंट पर अगर मेजर करना हो हमें एक्सियल पॉइंट पर, तो थीटा कितना रखना होगा, 0 डिग्री. दैट मीन्स यहाँ पर 0 डिग्री रखा जाए तो क्या होगा, ये 0, ये हमारा 1 हो जाएगा. 3 + 1 4 अंडर रूट 2, दैट मीन्स ये क्या आएगा, 2p by 4 pi epsilon naught r cube. Got it? अगर इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री. नाउ इक्वेटोरियल पॉइंट, what will happen, p by 4 pi epsilon naught r cube
और यहाँ पर थीटा कितना रखेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए 90 डिग्री, दैट मीन्स cos थीटा 0, दैट मीन्स 3 approx 0 3 into 0 0 1, that means only this. If we take ratio of this according to question, axial point by equatorial point क्या आएगा हमारा 2/1, that means come back to question, answer will be 2/1, that means k will be 2. Okay, objective A. Now let's come back to next question. Is in this question it is saying that drift velocity that we know, हम जानते हैं drift velocity vd, it is how it is related with electric field. This is axis, ये पूछ रहा क्वेश्चन. तो as you know this is a popular formula that is v is equal to mu e, so we can say that v directly proportional to vd directly proportional to e. ये तो क्वेश्चन हमारा सॉल्यूशन हो गया. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ठीक है ये तो क्वेश्चन हमारा निकल गया कि vd is directly proportional to e, that we can say that vd is equal to mu e. नाउ ये क्वेश्चन राइज करता है जो हम देख सकते हैं पीछे, ये कह रहा है क्वेश्चन में कि vd इस रिलेशन है, लेकिन ये किस तरह से ओम्स लॉ को ओबे करता है, ओम्स लॉ को फॉलो करता है. ठीक है, तो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तो ये vd is equal to mu e, ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है. यहां तक तो ठीक है. Now I prove it how it is follows Ohm's law. So drift velocity we know vt is equal to what is j by ne. J means current density, I by n a e. This all. Now mu, and we know electric field is potential difference by length of material or conductor. Got it? Now यहाँ हम देख सकते हैं variable is voltage and we can see is current. We can say that V is equal to, we can say that L by mu and a e into I. These all are constant, and my dear friend, this constant is called resistance. So we can say that V is directly proportional to I, that is Ohm's law. So we can say V directly proportional to A, E follows Ohm's law. Got it? So answer will be VD directly proportional to E. Now come back to next question. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द करंट इन कंडक्टर. तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का कौन सा प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है जो करंट को डिटरमाइन करता है कंडक्टर में. सपोज ये पता होना चाहिए, मैं आपको थोड़ा थ्योरी बताता हूँ. कंडक्टर की बात अगर कर रहे हैं, जब भी कंडक्टर की बात करेंगे तो कंडक्टर में जब भी बात करेंगे करंट की, तो इसमें इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल, ओनली इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल, एंड दैट हैज व्हिच प्रॉपर्टी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओनली ड्रिफ्ट वेलोसिटी. इलेक्ट्रॉन के पास केवल ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है और इसके कारण वो कंडक्टर में करंट फ्लो करवाता है. गॉट इट? और जब अगर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, अगर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं एंड माय डियर फ्रेंड्स होल्स भी होते हैं. ये आपको नहीं पता है, आगे पता चलेगा सेकंड टर्म में, लेकिन होल भी होते हैं. यहाँ पर माइन्यूट इफेक्ट होता है थर्मल वेलोसिटी का. माइन्यूट इफेक्ट होता है किसका? थर्मल वेलोसिटी का. सो फॉर कंडक्टर only electron, only drift velocity is responsible. So answer will be A. Got it? Any problem till now? Any problem? Okay. Now it is telling sorry, a positive charge is moving towards an observer. कह रहा है कि एक पॉजिटिव चार्ज है वो ऑब्जर्वर की तरफ चल रहा है. यहाँ हमारा ऑब्जर्वर खड़ा है, देख रहा है. एक पॉजिटिव चार्ज ऑब्जर्वर के साइड चल रहा है, तो कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा. देखो हम ये जानते हैं कि जब भी करंट फ्लो करता है किसी भी वायर से, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? राइट हैंड पाम रूल, वी नो दैट कि अगर हम किसी वायर को अपने पाम में रखें तो जो कर्ल क्या चारों फिंगर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है. सो अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो ये हमारा क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा.
तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में और यहाँ पर ऑब्जर्वर इसको देख रहा है तो क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज करेक्ट, दैट इज इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इट इज सिमिलर टू करेंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, कह सकते हैं हम लोग ये दोनों सिमिलर है, करेंट फ्लो कर रहा है। तो करेंट अगर फ्लो कर रहा है, अगर करेंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो माय डियर फ्रेंड्स अगर करेंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है हमारा, तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, होगा बाय राइट हैंड पाम रूल वी कैन से। और ये हमारा जो होगा, ये ऑब्जर्वर क्या देखेगा, ये घूम रहा है, सपोज एक ऑब्जर्वर के साइड में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो क्या देखेगा, इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्वर के साइड में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये इस तरह से मूव कर रहा है, और वो कैसा मूव दिखेगा उसको, यू कैन इमेजिन इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। आप ये इमेजिन कर सकते हो, आपके साइड कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ कॉपर वायर carries a DC डायरेक्ट करंट, अगर कोई कॉपर वायर है डायरेक्ट करंट को फॉलो करवा रहा है, मतलब एक कॉपर वायर से डीसी पास कर रहा है, डायरेक्ट करंट पास कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, अभी तुरंत हमने डिस्कस किया, अगर करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, आउटसाइड होगा, डिपेंडिंग अपॉन हमने राइट हैंड पाम रूल से मेजर किया है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, आउटसाइड और इनसाइड, यस आउटसाइड, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड will be only outside the wire. Got it? Now, current carrying wire produces. These are same question. They are in three formats. अगर एक करंट फ्लो कर रहा है, वी हैव नोन दो, भी हम लोग पढ़ चुके हैं, करंट फ्लो करेगा किसी डायरेक्शन में वायर से, तो हम जान रहे हैं कि क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस सिमिलर क्वेश्चन लाइक दैट वी कैन से आंसर बी। नाउ कमिंग बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, work done rotating the magnet from theta 0 to 120 degree, it is telling 0 to 120 degree। चलो अगर मैग्नेट की बात कर रहे हैं, कह रहा है कि अगर थीटा 0 से हम लोग कहाँ मेजर करेंगे, मूवमेंट हो रहा है 120 डिग्री, वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू mb cos 0 डिग्री माइनस cos 120 डिग्री, फॉर्मूला वी नो दैट, व्हाट इज फॉर्मूला, mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, यही फॉर्मूला है हमारा, यही फॉर्मूला है। तो इस केस में अगर इसको मेजर करें तो mb cos cos 0 डिग्री माइनस cos 120, वी कैन कैलकुलेट कितना होगा, cos 5 माइनस 60, दैट मीन्स माइनस cos 60, दैट मीन्स 1/2, तो यहाँ माइनस 1/2 मतलब प्लस 1/2, cos 0 1 plus half 3/2, that means 3/2 mb। Got it? तो आंसर क्या होगा हमारा 3/2 mb। ठीक है, now next question, Gauss law for magnetism is, now this is a good question, Gauss law, we know that Gauss law इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आता है तो हम कहते हैं Gauss law is E dot dA is equal to, we say that E dot dA is equal to Q by epsilon naught. We say that Q by epsilon naught. That is, and this charge is enclosed charge. We know that it is. This is for electric field. This is for electric field. अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो गॉस लॉ क्या होगा हमारा, गॉस लॉ हो जाता है B dot ds is equal to, now we can see it is asking what is Gauss law। गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या अंतर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से ओरिजिनेट होता है, बस वो लौट कर नहीं आता है, इट नेवर फॉर्म्स अ क्लोज लूप, अगर ये पॉजिटिव से निकला है तो ये निगेटिव होगा, उसके अंदर जाता है, अब इस पॉजिटिव चार्ज के पास ये लौट के नहीं आ सकता है कभी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा नहीं होता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ पोल या साउथ पोल है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है अगर, तो ये लौट कर यहाँ से फिर से वापस आता है, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड में। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड में क्लोज लूप फॉर्मेशन होता है, क्लोज लूप फॉर्मेशन के कारण यहाँ पर क्या होता है, B dot ds is equal to 0। This is a magnetic field, this is a Gauss law for magnetism, for a magnet, magnetism। So coming back to
ऑफ क्वेश्चन, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। अभी तक हम समझ गए कि जो गॉस लॉ होगा हमारा वो बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। ना पहला ऑप्शन सही, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, बिकॉज दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स, यही हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है, यही हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है, ऑप्शन सही। एंड ऑल्सो माय डियर फ्रेंड्स, सी इज ऑल्सो ट्रू, we can see that it is equal to 0, that means A and C both, that is finally answer is D, answer is D, got it। now next question, कौन सा ऑप्शन गलत है इसमें। पहला, अच्छे से पढ़ते हैं, पहला कह रहा है द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the circuit changes and EMF is induced in a circuit। now sorry, this question is from Faraday's law। चलो Faraday's law को पहले डिस्कस कर लेते हैं। Faraday's law क्या कहता है कि अगर सपोज ये हमारा कॉइल है, कोई हमारा ये कंडक्शन कॉइल है, हमारा कोई कॉपर कॉइल, कोई भी वायर कॉइल है, और हम लोग यहाँ पर किसी मैग्नेट से मूवमेंट करवाते हैं, सपोज यहाँ से मैग्नेट से मूवमेंट करवाए, तो क्या होता है, जब मैग्नेट मूव करता है, मैग्नेट मूव कर रहा है, तो क्या होगा, इस कॉइल में जो फ्लक्स लिंकेज है, दैट इज द फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉइल, जो मैग्नेटिक फील्ड इससे लिंक हो रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको क्रॉस कर रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड जब तक चेंज करेगा तब तक क्या होगा, इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा। दिस इज फेराडे लॉ। नाउ क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक हो रहा है वो अगर चेंज होगा तो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन सर्किट। दिस इज ट्रू, दिस फेराडे लॉ ओनली, सही है। दूसरा कह रहा है क्वेश्चन, ऑप्शन बी कह रहा है हमारा, द इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट सो लॉन्ग टिल द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूस। ये भी सही है, जब तक ये चेंज होगा, जब तक मैग्नेट मूव करता रहेगा आगे या पीछे, तब तक क्या होगा, इसमें हमारा फ्लक्स के अंदर क्या करंट प्रोड्यूस होगा। दैट मीन्स ये सही है हमारा, जब तक ये इसके फ्लक्स लिंकेज चेंज करता रहेगा तब तक क्या होगा, इसके करंट प्रोड्यूस होगा। सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो ट्रू ऑप्शन, बट हमें क्या पता करना है, रॉन्ग स्टेटमेंट। चलो सी क्या है, large the amount of magnetic flux linked with the circuit, greater is the EMF induced in it। कह रहा है कि अगर सर्किट में, अगर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इसमें फ्लक्स बहुत अधिक लिंकेज हो रहा है, सी ऑप्शन दो क्या कह रहा है, कह रहा है कि सपोज इसके बहुत नजदीक हम मैग्नेट को ले आए तो क्या होगा, सी बहुत नजदीक मैग्नेट को ले आए हैं तो फ्लक्स लिंकेज क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि जब लाए हैं तो इस मैग्नेट को लाकर रोके हुए हैं, वेलोसिटी जीरो कर देंगे। अब वेलोसिटी जीरो, अब मैग्नेट चल नहीं रहा है लेकिन फ्लक्स लिंकेज तो बहुत है, तो क्या इस केस में इस कॉइल से करंट पास करेगा, क्या इस केस में इस करंट इस कॉइल से करंट पास करेगा, बताओ माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी नहीं करेगा। क्यों, फैराडे का लॉ यही कहता है कि फ्लक्स को चेंज होता है, अधिक होने या कम होने से मतलब नहीं है, वो चेंज होना चाहिए। सो ऑप्शन सी इज रॉन्ग, ऑप्शन सी इज रॉन्ग। तो याद रखना, यही बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था कि फ्लक्स लिंकेज को चेंज होना है, ठीक है, अधिक हो या कम वो मैटर नहीं करता है, फ्लक्स चेंज करना है। और डी ऑप्शन कहता है कि फ्लक्स जो करंट प्रोड्यूस होता है हमारा कॉइल में, उसकी डायरेक्शन को मेजर करते हैं किसके हेल्प से, लेंज लॉ से। ये करेक्ट है, एब्सोल्युटली ट्रू। That means correct option is C। Now, next question कह रहा है कि the amount of charge induced in the current in the circuit of resistance R is given by। कह रहा है कि कोई हमारा सर्किट है जिसका रेसिस्टेंस R है, ठीक है, इसमें अगर हमारा चार्ज इंड्यूस्ड हो रहा है, मतलब यहाँ पर इंडक्शन की बात हो रही है चार्ज, तो आगे देखते हैं। यहाँ पर सपोज ये हमारा सर्किट है, ठीक है, यहाँ पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है और इसके अंदर क्या हो रहा है कि इंडक्शन हो रहा है, इसके अंदर चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है हमारा। तो कह रहा है कि अगर ऐसा हो रहा है कि तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। तो हम जानते हैं कि जब भी हम लोग यहाँ पर चार्ज इंड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ हम कह सकते हैं ये बात, हम ये कह सकते हैं कि V इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, जो हमारा फैराडेज लॉ है, इसके अंदर इंडक्शन हो रहा है हमारा, ये कह रहा है क्वेश्चन। और तो इस क्वेश्चन में हम कह सकते हैं, इसको
हम ये 4 ऑप्शन है हमारा, इसको हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो हमारा डी होता है, हमारा डी जो इंड्यूस होता है हमारा किसी भी को, इस केस में जो हमारा इंड्यूस होगा डी ये क्या होता है हमारा dφ/r। वी कैन प्रूव दिस ऑल्सो। हाउ? नाउ अगर यहाँ देखें हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमने कहा कि dq इज इक्वल टू dφ/r। तो हम जानते हैं ये बात कि जो हमारा dq है यहाँ पर, dq जो हमारा यहाँ पर वो क्या हो रहा है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से प्रोड्यूस हो रहा है हमारा, और डी5। तो इस केस में हम लोग इसको रिमेंबर कर सकते हैं डायरेक्ट। इसका थोड़ा डेरिवेशन है वो काफी लंबा हो जाएगा, क्लास टाइम लिमिटेड हमारे, ठीक है। नाउ which one of the application is for ED current? ED current का कौन सा एप्लीकेशन यहाँ पर है? देखो सबसे पहले मैग्नेटिक ब्रेक्स। जब हम मैग्नेटिक ब्रेक्स की बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक ब्रेक हम जानते हैं जो हमारे ट्रेन में होता है वो ED करंट का एप्लीकेशन है, दैट इज ट्रू। स्पीडोमीटर, इट इज ऑल्सो ED करंट, यू नो। इंडक्शन फर्नेस में भी होता है ED करंट के हीट को यूज करके हम लोग मेटल को मेल्ट करते हैं उसको फर्नेस में, ये भी ED करंट। और ट्रांसफार्मर में तो ED करंट होता ही है। तो आंसर क्या होगा? ये तो ट्रांसफार्मर में तो ED करंट आता है, लेकिन वो उसका एप्लीकेशन नहीं, वो बाई प्रोडक्ट है। वी वांट टू रिड्यूस द ED करंट प्रोड्यूस्ड इन ट्रांसफार्मर, वो उसका बाई प्रोडक्ट है, वो हमारे लिए एक परेशानी के लिए। उसको हम लोग कैसे रिमूव करते हैं? वी नो, वी यूज लैमिनेटेड शीट टू रिड्यूस द ED करंट इन ट्रांसफार्मर। तो एप्लीकेशन कौन नहीं है? तो हमारा ट्रांसफार्मर इसका एप्लीकेशन नहीं है। Got it? Now, next question. The resistance of a coil for direct current is 10 ohm. When AC is sent through the same coil, its resistance could be. कह रहा है सपोज को हमारे पास कोई कॉइल है, इसका रेसिस्टेंस R है, या यू मानने कि ये कॉइल है, इसका रेसिस्टेंस R है, ठीक है, ठीक है। कह रहा है कि ये कॉइल, अब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर मान लो इससे AC पास करवा रहे, सपोज हमने पहले इसे AC पास करवाया, अगर हम इसे पहले AC मान लो कि ये हमारा R है, ठीक है, इससे पहले करंट हम पास करवाते हैं, मान लो कोई भी करंट, तो हम जानते हैं कि I क्या होता है हमारा V/R, और इसका रेसिस्टेंस क्या होता है R, यू नो दैट। लेकिन अगर किसी सर्किट में अगर उसके पास R भी है और उसके पास L भी है, R भी है और L भी है, कॉइल है तो इंडक्टेंस आएगा ही, R भी है L भी है, और उसको हमने किससे कनेक्ट किया है? क्वेश्चन कह रहा है AC से। तो अगर AC से कनेक्ट किया है हमने, तो हम जानते हैं कि इसका इंपीडेंस कितना होता है अगर AC है तो, यू नो दैट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, दैट मीन्स जो हमारा Z होता है वो ग्रेटर देन क्या होगा? R। सो वी कैन से दैट अगर AC की बात करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे, तो अल्टरनेटिंग करंट में जो रेसिस्टेंस या इंपीडेंस जो कहा जाए, क्योंकि वहां रेसिस्टेंस को इंपीडेंस बोलते हैं, तो वो इंपीडेंस क्या होगा हमारा? 10 ओम से अधिक हो जाएगा। Got it? Suppose we know that I is equal to V/Z, और ये Z पहले Z क्या था? R था, तब तुम समझ गए। अब ये Z क्या हो गया था? R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, मतलब ये R से बड़ा हो गया। अब ये R से बड़ा हो रहा था यहाँ पर, तो वी कैन से दैट कि जो सर्किट का जो इंपीडेंस है वो बड़ा हो जाता है। Got it? और ये भी कह सकते हैं हम लोग कि करंट जो होता है हमारा वो घट जाता है पहले वाले से। That means we are increasing Z, that is impedance, current will decrease. Got it? Now, next question. Sorry. The average of, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑल्टरनेटिंग करंट का है, एक्चुअली डिफिनेशन का ही करंट है, E is equal to E नॉट साइन ओमेगा टी। फ्रेंड्स हमें जानते हैं कि जो ओमेगा है हमारा ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये हमारा क्या है? किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट का ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में अगर हम एवरेज वैल्यू मेजर करते हैं, किसी का अगर मान लो एवरेज वैल्यू मेजर करना है, तो हम जानते हैं फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज ऑफ एनीथिंग व्हाट वी डू, 0 to टाइम हाफ। ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए एवरेज वैल्यू हाफ मेजर करते हैं। वी नो दैट फॉर फुल साइकिल व्हाट हैपेंस टू द एवरेज वैल्यू, कितना होता है एवरेज वैल्यू? बता दो, बताओ सोचो, ये क्या होता है? 0।
बिकॉज दिस साइड पॉजिटिव दिस साइड नेगेटिव बिकम 0। सो इसके लिए हम क्या मेजर करते हैं, 0 to हाफ, व्हाट मेजर, एवरेज इनटू dt, दैट्स इट। और नीचे हम लोग टाइम से इसको डिवाइड करते हैं। तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो हमारा जो वैल्यू आता है वो क्या आता है हमारा 2E0/5। इसको याद रखना है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा हमेशा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन है हमारा। क्या है क्वेश्चन, I इज इक्वल टू 0.5 साइन 314 इंटू टी। फ्रेंड ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस तरह के न्यूमेरिकल्स दिखते हैं हमेशा, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ये इसको कंपेयर करते हैं पहले, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम कह सकते हैं कि जो आई नॉट है हमारा वो कितना है 0.5, गॉट इट। और जो ओमेगा है हमारा वो कितना है 314, दैट इज ओमेगा है हमारा 314, ठीक है। अब ये कह रहा है फ्रीक्वेंसी कितना होगा, ओमेगा ही हमारा फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी किस में बोल रहा है, क्वेश्चन देख सकते हैं हर्ट्ज में। दैट मींस वी हैव टू फाइंड एफ दिस फ्रीक्वेंसी। नाउ हम जानते हैं कि 314 दिस इज इक्वल टू 2 पाई एफ, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। तो ये कह सकते हैं हम कि f इज इक्वल टू 314 पाई 2 पाई एंड ऑल्सो 314 by 2 into 3.14, और इसको सब्सट्रैक्ट कर दे यहाँ पर तो क्या आएगा हमारा ऊपर में 100, और यहाँ से सॉल्व कर देंगे 2 से कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 50। तो हमारा आंसर क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, गॉट इट। नाउ अब ये कह रहा है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस वेरीज विथ डिस्टेंस एज, देखो between two charges, sorry it is will be charges not changes, charges। तो इस क्वेश्चन हम देख सकते हैं अगर दो, हम जानते हैं कूलम्स लॉ से, अगर सपोज ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, तो हम जानते हैं कूलम्स लॉ से कि फोर्स इज इक्वल टू व्हाट इज फोर्स, कांस्टेंट 1/4 एप्साई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 by r स्क्वायर। तो वेरी कैसे करता है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। दैट मींस हम ये कह सकते हैं कि वेरी जो करेगा F है और r है यहाँ पर, तो रिलेशन क्या होगा हमारा कर्व स्टेप का। तो क्वेश्चन को देखिए अगर, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो माय फ्रेंड, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में कह सकते हैं, कह रहा है कि इस डायग्राम में फील्ड स्ट्रेंथ की बात हो रही है, देख सकते हैं हम लोग किसकी बात हो रही है, फील्ड स्ट्रेंथ। तो फील्ड स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है फाई। नाउ फाई फ्लक्स क्या होता है, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, मतलब एक गिवन एरिया में, दिए हुए एरिया में कितना फील्ड लाइन पास कर रहा है उसको से हम लोग क्या निकालते हैं, फ्लक्स निकालते हैं। अगर सपोज ये एक हमारा एरिया है और सेकंड हमारा दूसरा केस है जिसमें 2 फील्ड लाइन है, पहले फिगर में 4 फील्ड लाइन 1 2 3 4, सेकंड फिगर में 1 2, दिस आर फॉर ओनली अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। यहाँ हमने 4 फील्ड लाइंस माना, इसमें 2 फील्ड लाइंस माना, तो फील्ड स्ट्रेंथ किसमें अधिक होगा, फील्ड स्ट्रेंथ इसमें अधिक होगा जिसमें फील्ड लाइन अधिक है गिवन एरिया में, ठीक है। तो हमारा फील्ड लाइन उसमें अधिक होगा। तो क्वेश्चन को देखिए अगर, तो कह रहा है कि फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ पे अधिक होगा, तो काउंट कर लो कि दिए हुए एरिया P और दिए हुए शीट Q दोनों में किसमें फील्ड लाइन अधिक है। अगर हम P को देखें तो 1 2 3 4 5 लाइन इससे पास कर रहा है टच करते हुए। अगर Q की बात करें तो 1 2 3 4, जो फिफ्थ लाइन है वो पास नहीं कर रहा है, वो दूर से निकल जा रहा है, टच नहीं कर रहा है। दैट मींस एट P फील्ड लाइन विल बी मोर, दैट वी कैन से। नाउ ऑप्शन देखें अगर, तो फील्ड लाइंस क्या P के पास जो फील्ड लाइंस होगा वो कम होगा Q से, नो। फील्ड लाइंस इक्वल होगा, नो। फील्ड लाइंस more at P than Q, yes, this is my answer and not D। अब इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन में अगर देखें हम लोग तो 4 फिगर है और कह रहा है कि अगर एक पॉइंट चार्ज है हमारा, ठीक है, एक पॉइंट चार्ज के पास हमने कंडक्टिंग स्फीयर को लाए हैं, तो क्या होता है,
इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन IIT 96 में पूछा गया था, सिमिलर क्वेश्चन, जिसमें ये बोला गया था कि अगर एक कंडक्टिंग स्फीयर है और उससे अगर मैग्नेटिक फील्ड पास करेगा तो किस तरह का फील्ड लाइंस होगा। यू मस्ट हैव नो इफ यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। वो इस तरह का होता है, वो इस तरह से निकलता है, वो इस तरह से निकलेगा ताकि सरफेस पे वो 90 डिग्री बनाकर निकलेगा, एंटर भी करेगा 90 डिग्री बनाकर, और जब निकलेगा तो भी 90 डिग्री बनाकर चलेगा। ठीक है, ये हमारा थ्योरी है जो IIT 96 में पूछा गया था ना। इस क्वेश्चन में देखें तो ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर एंगल का तो कबारा हो गया है, ये तो हो नहीं सकता है। ये भी नहीं हो सकता है, एंगल का सब कुछ खत्म हो किया गया, कोई मैटर ही देखा नहीं गया यहाँ पर। इसको देखें अगर ऑप्शन इसको, तो यहाँ तो 90 डिग्री दिख रहा है दोनों साइड, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन में कुछ चक्कर है। देखो यहाँ पर ये बता रहा है कि फील्ड लाइंस लौट के फिर नहीं आ रहा है, क्या लौट के आ सकता है? नो। इसको देखिए अगर 90 डिग्री से इंटर कर रहा है और 90 डिग्री से निकल जा रहा है, दैट मींस ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। When an electric dipole is held at an angle in an electric field, कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा रखा गया है, सपोज इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हमने प्लस क्यू और माइनस प्लस क्यू और माइनस क्यू यहाँ लिया है, तो क्या होगा बता दो। अगर हमने प्लस क्यू और माइनस क्यू लिया है तो हम जानते हैं कि इस प्लस क्यू पर फोर्स कितना लगेगा, QE, और इस पे कितना फोर्स लगेगा माइनस क्यू। वी कैन से इफ वी आर टेकिंग साइन डायरेक्शन देन वी विल नॉट राइट माइनस, सिंपली QE इन लेफ्ट डायरेक्शन एंड QE इन राइट डायरेक्शन। तो इस डाइपोल की बात करें, इस डाइपोल पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, इस पर नेट हो जाएगा QE राइट डायरेक्शन एंड माइनस QE सिंस इट इज इन लेफ्ट डायरेक्शन, दैट इज QE माइनस QE, व्हाट इट विल बी 0। लेकिन डाइपोल तो होगा, लेकिन ये हमारा टॉर्क तो होगा, इसमें टॉर्क तो होगा, क्योंकि टॉर्क इज प्रोड्यूस व्हेन इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्रोड्यूस। यू नो वन टर्म, एक टर्म आता है मेरे डियर फ्रेंड्स, कपल। व्हाट इज कपल? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर इक्वल फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा हो तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, घूम जाएगा। सपोज आप अपने रूम में अगर बेसिन में नल खोलना है तो क्या करते हो, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हो एंड इट प्रोड्यूस कपल, दैट मींस वो घूम जाता है। टॉर्क तो प्रोड्यूस होता है लेकिन नेट फोर्स कितना होता है उसमें, 0। तो इस डाइपोल पे क्या होगा, नेट फोर्स तो 0 होगा लेकिन टॉर्क होगा। टॉर्क कैसे मेजर करते हैं, वी कैन से फोर्स इज QE and we measure this perpendicular distance. If it is D, then we can say QED. Got it? And we also know that QD is P and it is P dot P. And actually it is a P cross E. When we drive, it becomes P cross E. And approximate, and इसको कह सकते हैं हम लोग P into E हमारा डाइपोल मोमेंट होता है, हमारा टॉर्क होता है किसी डाइपोल मोमेंट का। ठीक है यहाँ तक? तो यहाँ हम देखिए अगर तो फोर्स 0 होगा हमारा और टॉर्क क्या होगा, 0 नहीं होगा। ठीक है यहाँ तक? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क डन इन कैरिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम A to B इन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ 1 वोल्ट पोटेंशियल। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन मान के चलो फिजिक्स में टर्म 1 में इक्विपोटेंशियल से कोई ना क्वेश्चन तो रहना है, ये मान के चलो, इट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक। इक्विपोटेंशियल क्या होता है, जिस सपोज करो यहाँ पर चार्ज है हमारा, वैसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर, यहाँ भी पोटेंशियल सपोज 10 वोल्ट, यहाँ भी पोटेंशियल 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 10 वोल्ट, देन वी विल से दिस सरफेस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, EPS, इसको EPS कहते हैं। तो अगर EPS में अगर किसी भी दो पॉइंट में सपोज यहाँ से यहाँ सपोज करो कि हमारा ये जो EPS है हमारा, इस EPS में हम लोग इस पॉइंट से लेकर उठाकर एक चार्ज को यहाँ रख देते हैं, मतलब यहाँ से उठाएं और यहाँ रख दें, तो वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू, व्हाट इज वर्क डन, वी नो दैट V इज इक्वल टू U by Q, है ना। तो V इज इक्वल टू U by Q, तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो अगर 1 से 2 पर चार्ज को हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं 1 to 2, तो
2 पे पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट, 1 पे पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट इंटू चार्ज क्यू, वर्क डन कितना हो जाएगा हमारा 0। दैट मीन्स हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा 0 जूल। तो हमारा ऑप्शन है कितना होना चाहिए, दैट इज डी। गॉट इट। चलो अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है सर्किट का, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है यहाँ पर। तो इस सर्किट को अगर देखें हम लोग तो जो सर्किट है हमारा इसमें इसको इसका कह रहा है कि अगर ए और डी के बीच में, ये हमारा पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमारा डी है, इसके बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखो तो हम ये कह सकते हैं हमको इसके और इसके बीच में पता करना है, वी हैव टू फाइंड बिटवीन दिस ए एंड डी। तो वी कैन से दैट ये जो 3 ओम है हमारा और ये जो 3 ओम है, ये दोनों कौन सा कनेक्शन है सीरीज, वी कैन से इट इज 6 ओम। यहां तक तो ठीक है, ये हमारा कितना है 6 ओम। तो अभी तक हमने क्या देखा, ये हमारा 6 ओम, ये ए पॉइंट 6 ओम और यहाँ सी पॉइंट, ठीक है। और एक हमारा 6 ओम नीचे भी है, मतलब ए टू सी एक 6 ओम नीचे भी है, ये भी हमारा 6 ओम है, और इसके बाद फिर एक डी भी। तो और फिर यहाँ से एक पॉइंट जो है हमारा 3, हमारा जो 3 ओम है, और फिर यहाँ से पॉइंट डी है हमारा, ठीक है यहाँ तक। तो अभी भी कह सकते हैं ये 3, 6 और 6 ओम है यहाँ पर, ये कौन सा कनेक्शन है पैरेलल, वी कैन से दैट इज 3 ओम। ये तो पता है ना फ्रेंड्स कि अगर पैरेलल होता है तो वी हाउ डू वी फाइंड R1 R2 R1 R2 by R1 plus R2, वी यूज दिस। और अगर जब सेम होता है दोनों 6 ओम है, अगर डायरेक्टली हाफ कर सकते हैं, यहाँ पे पुट करके आप चेक भी कर सकते हो उसको, ये 3 ओम। तो अभी ये मिल गया हमको टोटल 3 ओम। तो हमारा सर्किट क्या बना, ये बना ए, अभी कितना मिला यहाँ तक मिला 3 ओम। और अभी क्या है हमारे पास, देखो यहाँ तक तो मिला कितना, यहाँ तक यहाँ तक हमको कितना मिला 3 ओम, ठीक है। तो ये तो 3 ओम हो गया हमारा, और ये पॉइंट हमारा सी है, ठीक है। अभी क्या है कि यहाँ पर 3 ओम है और ये पॉइंट डी है, और यहाँ पर दिया हुआ है पॉइंट और ये 3 ओम है ना, इन दोनों के बीच पता करना है, ठीक है। तो अभी ये और 3, ये 3 कौन सा कनेक्शन है, ये दोनों सीरीज कनेक्शन है, दैट इज 6 ओम। नाउ ए और डी के बीच में क्या क्या बचा, एक 6 ओम और एक 3 ओम। आते हैं यहाँ देखो, अब क्या बचा, ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में एक 6 ओम बचा और एक 3 ओम बचा। ये हम देख सकते हैं पीछे से, ये हम देख सकते हैं क्या बचा, 6 ओम और एक 3 ओम। तो वी कैन से अब ये दोनों कौन से कनेक्शन में है पैरेलल, अभी मैंने बताया आर इक्विवेलेंट क्या करना है, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। तो 6 इंटू 3 by 6 plus 3, that means 18 by 9 2 ohm, we can say answer will be 2 ohm। got it, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अगला क्वेश्चन कह रहा है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ n रेसिस्टर ईच ऑफ सेम रेजिस्टेंस, क्या मतलब क्या कह रहा है, सपोज हमारे पास हमारा रेजिस्टेंस, हमारे पास R0 को रेजिस्टेंस हमारे पास, ये कितना है n है, और सब को किस कनेक्शन में रखा गया है, तो कह रहा है कि अगर सबको सीरीज कनेक्शन में रखा जाए, ठीक है, सबको सीरीज का कनेक्शन में रखा जाए, दैट मींस R0 कितने टाइम्स n टाइम्स, वी कैन से R0 into n। अब सपोज इमेजिन करो कि ये 1 2 3 4 लाइक दैट, ये R, ये भी R, ये भी R, और 3 बार R सबको जोड़ना है, तो सीरीज में कितना होता है ये 3R। और उसी तरह से अगर n है अगर हमारे पास, तो कितना होगा n इंटू R0, ठीक है। और ये कह रहा है क्वेश्चन में इसको, ये कितना आ रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चन में दिस इज इक्वल टू R, दैट मींस वी कैन से, तो जो हमको रेजिस्टेंस गिवन है वो कितना है, वो है वैल्यू उसका R बाई n। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाया जाए, अगर इसी रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाया जाए, मतलब फिर हम लोग इसको कैसे लगाएं, पैरेलल में 1 2 3 पैरेलल में, अगर ये R ये R ये R ये R। माय डियर फ्रेंड्स, एक शॉर्टकट याद रखना कि जब भी पैरेलल में सेम रेजिस्टेंस रहता है
तो सिंपल लिखते हैं R बाई जितना ब्रांचेज है हमारे पास 1 2 3 4, तो R बाई 4 ये होता है। तो क्वेश्चन के अनुसार अगर हमारे पास 1 2 3 सो ऑन एन टाइम्स तक हमारे पास रेसिस्टेंस है और सभी की वैल्यू कितना है आर आर, तो हमारे पास टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, पहले टोटल रेसिस्टेंस ये हो जाएगा आर नॉट। एक हमारा कितना था क्वेश्चन के अनुसार, हम माने हैं क्या माने हैं, क्वेश्चन में हमने क्या माना है आर नॉट माना था, तो आर नॉट कितना बार एन टाइम्स, गॉट इट। लेकिन ये आर नॉट हमने माना था, ये आर नॉट है कितना, वैल्यू हमने कितना निकाला है, ये आर नॉट को निकाला है हमने आर बाई एन। तो अगर आर नॉट को पुट करें आर बाई एन तो क्या आंसर आएगा हमारा आर बाई एन स्क्वायर। तो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा आंसर हमारा आर बाई एन स्क्वायर, गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दो बल्ब है हमारा, एक 40 वॉट का एक 60 वॉट का, ठीक है। दो बल्ब है हमारा 40 वॉट का और 60 वॉट का, ठीक है। एक 40 वॉट है और एक 60 वॉट है, ठीक है। और कह रहा है कि इसको कनेक्ट करें किससे हम लोग 220 वोल्ट लाइन से, मतलब 220 वोल्ट से कनेक्ट किया गया है, तो इनका रेसिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। सो ये तो सिंपल आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है इसका कि पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ये आप जान रहे हैं। we know that power is equal to v square by r, तो हम कह सकते हैं कि r is v square by t। तो पहले की बात करें अगर, तो पहले वाले में एक 40 वॉट है और एक 60 वॉट है, ठीक है। एक 40 वॉट और एक 60 वॉट, ठीक है। तो 40 वॉट की बात करें तो R1 कितना हो जाएगा v स्क्वायर बाई 40, R2 कितना होगा हमारा v स्क्वायर बाई 60। ये अब कह रहा है कि दोनों का रेशियो क्या होगा, क्वेश्चन यही करा ना, क्वेश्चन यही करा ना रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो रेशियो निकालना है, तो रेशियो जो पहला है हमारा R1 बाई R2, वी विल टेक रेशियो v स्क्वायर बाई 40 बाई v स्क्वायर बाई 60, वी विल गेट 360 बाई 40, 48 यहाँ तक, यहाँ क्या होगा 3/2। तो ऑप्शन देखिए हम लोग, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा 3/, सिंपल क्वेश्चन है यहाँ तक। चलो आगे, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ इज डिराइव्ड फ्रॉम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये तो डायरेक्ट आंसर याद रखो कि एम्पियर सर्क्यूटल लॉ जो है, जैसे सिंपल से यहाँ पहले यहाँ देखो, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या होता है, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्रॉस ए मैग्नेटिक क्लोज लूप। जिस क्लोज लूप को क्या कहते हैं हम लोग, कहते हैं हम लोग एम्पियर सर्क्यूट, ठीक है। ये बराबर होता है म्यू नॉट इंटू आई नेट करेंट, ये होता है हमारा कौन सा एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। और हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा ये होता है हमारा बायोट सेवर्ट लॉ होता है, बायोट सेवर्ट लॉ होता है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यही हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये हम जानते हैं बायोट सेवर्ट लॉ। तो याद रखो कि मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों इस जो हमारा एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है उसको हम लोग यहाँ से डिराइव कर सकते हैं, किससे बायोट सेवर्ट लॉ से। तो आंसर तो हमारा बी होगा, लेकिन मैं शॉर्ट में डेरिवेशन करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारा ये है हमारा नॉट आई बाई 4 पाई बाई आर स्क्वायर इंटू डी एल, हमने आर आर कैंसिल कर दिया, ये हमारा डी बी है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अब ये हम कह सकते हैं सपोज हमने कोई क्लोज लूप माना है यहाँ पर, जहां से क्लोज लूप फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि dB is equal to, we can say that mu naught I by 4 pi, इसका रेडियस क्या है हमारा r, we can say that integration of dl, और यहाँ r स्क्वायर कांस्टेंट है। हम ये कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड तो b, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा इंटीग्रेट करें तो b भी लिख सकते हैं, अभी इसको dB लिखते हैं यहाँ पर, इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 4 पाई r स्क्वायर इंटू डीएल। डीएल अगर इंटीग्रेट होगा, हमने डीएल स्मॉल लेंथ इसमें लिया था और इसको इंटीग्रेट करें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 पाई आर, ठीक है। 2 पाई आर कैंसिल कर दे अगर यहाँ पर तो क्या होगा, यहाँ से बचेगा 2 आर, दैट मीन्स वी कैन से डीबी इंटू 2 आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई,
देखो कंपेयर करो एम्पियर सर्किट लॉ से। इट इज कॉल्ड एम्पियर सर्किट लॉ। क्या होता है हमारा डीबी, या इसको एच या डीएल कुछ भी कहें, एच कह दो। बी डीबी जो होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको हम लोग डीएच भी लिखते हैं, दोनों इक्वल चीज है। तो अगर इसको डीएच लिखे यहाँ पर, एच डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो हम कंपेयर करो यहाँ पर, तो मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ एंड कांस्टेंट एंड नेट करंट। सो वी कैन से दैट कि एम्पीयर सर्क्यूटल लॉ कैन बी डिराइव फ्रॉम बायोट-सावर्ट लॉ। और एक मैंने रफ डिफिनेशन आप इसको कर दिया, आप इसको पेयर से करोगे तो आपका ये एक क्वेश्चन बन सकता है टर्म 2 के लिए, ठीक है। सॉरी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होता है हमारा वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करेगा, किसके लिए, डायमैग्नेटिक के लिए ना। देखते हैं जो हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है, डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, इसके अंदर जो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं वो रैंडमली इस तरह से होते हैं कि वो नेट जीरो होता है सब कुछ इसका। इसका जो मैग्नेटाइजेशन होता है, जो इसका अपना मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी होता है वो नेट जीरो होता है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक में भी जीरो होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो इसमें इफेक्ट दिख जाता है। इसमें क्या है, डाइपोल डायमैग्नेटिक में क्या होता है, जब इसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो इस केस में जो ससेप्टिबिलिटी होता है वो क्या होता है, वो निगेटिव होता है और माइन्यूट बहुत ही कम होता है। दैट मीन्स फॉर डायमैग्नेटिक इट इज दिस। दैट मीन्स अब मैं ग्राफ ड्रॉ कर दूं अगर, तो डायमैग्नेटिक के लिए जो ग्राफ होता है वो ये हो जाएगा निगेटिव, ठीक है, और निगेटिव के साथ साथ बहुत ही कम। और जो पैरामैग्नेटिक के लिए होगा, हमारा पैरामैग्नेटिक के लिए होगा, वो इस तरह से वेरी करता है टेम्परेचर के साथ, वो धीरे धीरे चेंज कर, चूंकि यहाँ पर फॉर्मूला होता है ये हमारा फॉलो करता है क्यूरी लॉ जो होता है। और इसी तरीके से हमारा जो फेरोमैग्नेटिक होता है मटेरियल, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में भी वही होता है हमारा कि एक क्यूरी टेम्परेचर के बाद ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है, और उसके पहले ये घटते, इस तरह का ग्राफ होता है। किसके लिए, फेरोमैग्नेटिक के लिए, फेरोमैग्नेटिक। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि कह रहा है कि डायमैग्नेटिक के लिए, डायमैग्नेटिक के लिए क्या होगा, डायमैग्नेटिक निगेटिव होना चाहिए और बहुत ही कम होना चाहिए। तो क्या होगा ऑप्शन हमारा डी, कम भी है, वी कैन सी, कम भी है और बहुत ही कम है और निगेटिव है। यहाँ पर ये किसका है, ये है पैरामैग्नेटिक का। ये किसका है, ये है पैरामैग्नेटिक का। ये किसका है, फेरोमैग्नेटिक का, ठीक है, गॉट इट। चलो अब यहाँ पर आगे देखें, अगर कटिंग बार मैग्नेट, तो कह रहा है कि अगर बार मैग्नेट को काटे, अगर इस तरह से, हम लोग पहले पढ़ते थे कि अगर बार मैग्नेट को काटे, अगर सपोज यहाँ नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, अगर बार मैग्नेट को हमने काट दिया तो क्या होता था कि ये नॉर्थ और साउथ फिर से ओरिजिनेट हो जाया करता था। और तो हम लोग कहते थे कि मैग्नेट ऑलवेज अपीयर, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज अपीयर्स इन पेयर्स, ये हम लोग पढ़ते थे। अब ये कह रहा है कि अगर सोलिनॉइड को ऐसा किया जाए, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स आपने पढ़ा है ये चीज, सोलिनॉइड जो है वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो अगर हम कहें कि अगर सोलिनॉइड को हमने ऐसा किया कि सोलिनॉइड को हमने काटा, सपोज हमने एक सोलिनॉइड लिया और हमने सोलिनॉइड को क्या किया, सोलिनॉइड लिया और हमने सोलिनॉइड को यहाँ से काट दिया, ऐसे सोलिनॉइड लिया हमने और हमने सोलिनॉइड को यहाँ से काट दिया, तो क्या होगा, हम जानते हैं कि सोलिनॉइड के लिए बी जो होता है हमारा वो कितना होता है, म्यू नॉट एन आई। तो देखो अब क्या होगा, म्यू नॉट तो कांस्टेंट है हमारा, और करंट जो होगा, अगर सपोज अब इस सोलिनॉइड जो है वो दो टुकड़ा में बट गए, एक ये पीस एक ये पीस, दो पीस में बट चुका है सोलिनॉइड। अब अगर करंट की बात करें तो करंट यहाँ भी तो आई फ्लो कर रहा है और यहाँ भी क्या फ्लो करेगा, आई, करंट आई फ्लो कर रहा है, क्योंकि वो दोनों सेम कनेक्टेड है, ठीक है। करंट तो सेम है, लेकिन चेंज क्या करेगा, चेंज कर रहा है एन। व्हाट इज एन, ये एन क्या है, ये एन है हमारा, क्या है ये है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स और यूनिट लेंथ, टर्न्स होता है हमारा। तो इस केस से हम देख सकते हैं कि जो टर्न्स है हमारा वो कम गए। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को, अगर सोलिनॉइड को हम लोग काट दे रहे हैं, काट रहे हैं,
सॉरी यूनिट को हम लोग काट रहे हैं तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि उसका एन इफेक्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को इफेक्ट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स हमारे इफेक्ट कर रहा है, दैट मींस वीकर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज विल बी सीन, बिकॉज यहाँ पर एन क्या हो जाएगा, कम जाएगा, काटने से एन क्या होगा, कम जाएगा। नोटेड यहाँ तक। चलो आगे। अब कह रहा है कि ऐसा यूनिट किसका ओम नहीं होता है, ठीक है। वी नो दैट ओम किसका यूनिट है, बता दो। ओम है किसका यूनिट, ओम होता है रेसिस्टेंस का यूनिट, ठीक है। लेकिन अपनी एसी में पढ़ रखा है कि एसी सर्किट में कैपेसिटिव कैपेसिटर का भी रेसिस्टेंस होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस हम जानते हैं। और एक इम्पीडेंस भी आता है हमारा, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस ये भी क्या है हमारा, ओम। इसका रेसिस्टेंस क्या है, ओम। चलो अब क्वेश्चन को देखें तो रेसिस्टेंस इसका ओम क्या है, रेसिस्टेंस इसका यूनिट क्या होगा, ओम। रिएक्टेंस दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका भी रेसिस्टेंस क्या होगा, इसका भी ओम, ये हमारा यूनिट क्या होगा, ओम। इम्पीडेंस, इम्पीडेंस इसका भी रेसिस्टेंस, इसका भी यूनिट क्या होगा, ओम। कैपेसिटेंस इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है फेराड। क्या होता है इसका यूनिट, फेराड। दैट मींस किसका यूनिट ओम नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा हमारा, तो इस केस में आंसर क्या होगा हमारा, सी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यहां तक। अब कह रहा है यहाँ पर कि फॉर अ एलसीआर सर्किट, किसी एलसीआर सर्किट को और कम्युनिकेशन में यूज कर रहे हैं हम, तो कौन सा स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। चलो बात करते हैं, हमने पढ़ा है कि अगर एलसीआर सर्किट को आप जानते हो कि एलसीआर सर्किट का जो यूज है हमारा कम्युनिकेशन में, वो ट्यूनिंग का यूज है। जैसे आपने पढ़ा है कि रेडियो ट्रांजिस्टर वगैरह में हम लोग ट्यूनिंग किया करते थे, वो घुमाते थे तो कुछ हम लोग वहां बैलेंसिंग किया करते थे। तो एलसीआर सर्किट में हम लोग ट्यूनिंग किया करते हैं। ट्यूनिंग कैसे हुआ करता था, तो वहां पर डिफाइन करते थे हम लोग क्वालिटी फैक्टर से, दैट वाज 1/r इंटू L/C। अब हमें कम्युनिकेशन की जब बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो हमें क्वालिटी फैक्टर जो है वो मैक्सिमम चाहिए। क्वालिटी क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। तो क्वालिटी को अगर अधिक रखना है, देखो अगर इस फैक्टर को अधिक रखना है तो हम क्या करेंगे, इस फैक्टर को अधिक रखना है तो R कम होना चाहिए, L अधिक होना चाहिए और C कम होना चाहिए। अब देखते हैं हमारा R क्या होना चाहिए, कम। देखो R सबसे कम किस में है, सबसे कम इसमें है, फॉर्मूला 1/r अंडर रूट L/C। R सबसे कम इसमें है, L अधिक होना चाहिए, L किस में अधिक है, L इसमें अधिक है, C सबसे कम किस में है, सबसे कम इसमें, दैट मींस आंसर इज एब्सोल्युटली C। आंसर क्या है हमारा, C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच इज रॉन्ग, कौन रॉन्ग है हमारा। देखो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी कंफ्यूजिंग भी है यहाँ पे। कह रहा है कि ट्रांसफर कैन नॉट वर्क ऑन डीसी। पहला क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसफार्मर डीसी पे काम नहीं कर सकता, ये रॉन्ग पूछ रहा है। देखते हैं, पहले बी की बात करते हैं। ट्रांसफार्मर कैन नॉट चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। देखो ये अगर बात करें तो तुम ट्रांसफार्मर, हम जानते हैं ये चीज। लेट्स से आपको ट्रांसफार्मर का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ट्रांसफार्मर में आप जानते हैं ये बात कि ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होता है, इधर प्राइमरी वाइंडिंग उधर सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। ये प्राइमरी हो गया और ये सेकेंडरी हो गया। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी की हम बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि यहाँ पर हम जो प्राइमरी वोल्टेज लगा रहे हैं और यहाँ पर क्या होता है, सेकेंडरी वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। लेकिन इन सभी में फ्रीक्वेंसी चेंज कभी नहीं हो सकता, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। जिस फ्रीक्वेंसी से हमने इनपुट दिया था वही फ्रीक्वेंसी आउटपुट में जाता है हमारा। साथ साथ पावर क्या होता है हमारा, कांस्टेंट, बिकॉज ट्रांसफार्मर कोई एनर्जी डिवाइस नहीं है, जस्ट ये म्यूचुअल इंडक्शन से ट्रांसफर करता है एनर्जी को, या कहें पावर, एक्यूरेट टर्म पावर। ट्रांसफार्मर एक हमारा क्या स्टैटिक मशीन है, स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन है, जो पावर को ट्रांसफर करता है हमारा प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में। तो पावर ट्रांसफर होगा, दैट मीन्स वी आई इधर से और ये वी आई इधर से ट्रांसफर हो जाता है, V1 I1 और यहाँ V2 I2 ये होता है। लेकिन पावर कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होना चाहिए। अब देखते हैं ऑप्शन क्या था हमारा। ऑप्शन है कि ट्रांसफार्मर कैन नॉट वर्क ऑन डीसी। देखो ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है, ट्रांसफार्मर काम करता है किस प्रिंसिपल पे,
ट्रांसफार्मर काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन पर, और म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमिना जो डेफिनेशन है वो यही कहता है कि एक कॉइल से एक कॉइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो फील्ड है, वो जो लिंक हो रहा है दूसरे कॉइल से, अगर इस वन कॉइल का जो फील्ड है या कहीं जो सेकेंड जो लिंक हो रहा है अगर वो चेंज करता है तो क्या होगा? अगर चेंज कर रहा है तो इसके अंदर क्या होता है? इंडक्शन मतलब करंट प्रोड्यूस होता है या ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो हम कह सकते हैं ये चेंज होने के लिए क्या डीसी के का यूज करके हम फील्ड को चेंज कर सकते हैं कभी? नेवर पॉसिबल। दैट मींस वी कैन से दैट कि डीसी का यूज करके पॉसिबल नहीं है ट्रांसफार्मर वर्क कर सकता है, तो इट्स वर्क ओनली फॉर एसी। ठीक है। दूसरा, फ्रीक्वेंसी चेंज होगा? कभी नहीं चेंज होगा। ट्रांसफार्मर पावर प्रोड्यूस करता है क्या? कभी करता है प्रोड्यूस? कभी कर रहा है? कैन प्रोड्यूस पावर। क्या डिफाइन किए भी कि पावर को कांस्टेंट, यहाँ कभी भी पावर प्रोड्यूस नहीं कर सकता, कांस्टेंट रहता है। दैट मींस ये हमारा क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट है, मतलब ये हमारे लिए आंसर है। यही आंसर था हमारा। डी कह रहा था कि एसी वोल्टेज अगर हम अप्लाई कर रहे हैं इट कैन बी रेज्ड एन टाइम्स, और डी बिल्कुल सही है। हम जानते हैं कि अगर हम यहाँ से वोल्टेज कुछ भी अप्लाई कर रहे हैं या इस वोल्टेज को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, ये हमने पढ़ रखा है स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। दैट मीन्स ये भी पॉसिबल है हमारा, तो ऑप्शन सी जो है हमारा वो रॉन्ग था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब कह रहा है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, फाइव इज इक्वल टू, यहाँ पर ये टी स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, फाइव इज इक्वल टू 3 टी माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1। अब कह रहा है कि ईएमएफ निकालो। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। कौन सा लॉ है ये? यस, फैराडेज लॉ। एंड अगर पूरे ठीक से कहें तो फैराडे लेंज लॉ। ठीक है, और फाइव हमारा कह रहा है कितना? फाइव कह रहा है 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर दें, माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस, सॉरी नॉट 2 है, 2 इज है, 3t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1, यहाँ स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको तो वी कैन से माइनस डिफ्रेंशिएशन डी टी टी डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस 40 ऑल दैट, यहाँ हमारा डिफ्रेंशिएट हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा डिफ्रेंशिएशन है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये क्या बचा? 3। तो यहाँ पर क्या बचा? -3 माइनस 40। ना क्वेश्चन कह रहा है कि t इज इक्वल टू 1 पर, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर, हम ये कह सकते हैं यहाँ पर -3 माइनस 4, दैट मीन्स आंसर विल बी 1। नाउ वी कैन से सी दैट आंसर नहीं मैच हो रहा है क्योंकि इसका कुछ मिस्टेक है, आंसर मिस्टेक है। इसको अगर हम लोग 3 माइनस we can say 40 like that, when we differentiate this only, and when we put t is equal to 1, तो मैं देख सकते हैं कि ये आंसर मिस्टेक है। इसका 1 वोल्ट आंसर होना चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन मिस्टेक, इसका आंसर क्या होगा? 1 वोल्ट। ठीक है, फ्लक्स लिंकेज कितना होगा? जो फ्लक्स लिंकेज है कहाँ जो प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा? 1 वोल्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A battery of 12 volt is connected to primary windings of a transformer. My dear friends, दिख तो रहा है काफी सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा, बच्चा लगा क्वेश्चन आता है लग जाएगा बनाने में। क्या करेगा स्टूडेंट्स? V इज इक्वल टू V2 बाई V1 इज इक्वल टू N2 बाई N1 इज इक्वल टू I1 बाई I2। इसको लोगे, निकाल दोगे, यही करोगे? नहीं, ये नहीं करना है। क्यों? क्योंकि देखो कंफ्यूज कर रहा है तुमको, यहाँ पर लिख दे रहा है तुमको। क्या लिख रहा है? देखो आप क्या लिख रहा है, बैटरी। बैटरी मतलब क्या? बैटरी मतलब डायरेक्ट करंट है, डीसी, और ट्रांसफार्मर में डीसी काम नहीं करता है कभी भी। ठीक है, तो सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगा? आंसर हमारा 0। ठीक है, तो यहाँ से भी आंसर आएगा और कुछ ना कुछ ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, टेक केयर अबाउट दिस। ना अगला क्वेश्चन की बात करें, अगर असर्शन रीजनिंग, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी मजेदार क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। बात करें स्टेटमेंट, जो सेशन कहता है हमारा कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मूविंग इलेक्ट्रिक इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट चेंज। चलो पहले हम बात करते हैं,
अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, देखो अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज को हमने फेंक दिया मैग्नेटिक फील्ड में जाकर, तो क्या होता है, हम जानते हैं कि चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में गया, तुम जानते हैं जाते के साथ फोर्स लगता है, और वो फोर्स कौन सा फोर्स होता है, लॉरेंज फोर्स। वो क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, इस तरह से निकालते हैं। अगर परपेंडिकुलर है यहाँ पर तो क्यू वी बी इस तरह से यूज करते हैं। हम ये जानते हैं कि जब ये इंटर किया इस डायरेक्शन में, इसका वेलोसिटी v है, तो इसका फोर्स क्या होगा, इसका फोर्स जो होगा यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, इसका फोर्स जो क्या होगा परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। अगर हमने इधर फेंका वेलोसिटी के परपेंडिकुलर और ये इस तरह से मूव कर जाएगा, इस तरह से क्या होगा, मूव कर जाएगा। ये हम जानते हैं इस तरह का फिनोमेना यही होता है ना। अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि जो सर्कुलर मोशन यहाँ किया, तो हम कह सकते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा हमारा mv²/r, वो क्या होगा, किसके बराबर, qvb। तो वी कैन से कैंसिल दिस, तो कह सकते हैं हम vv इज इक्वल टू qb बाई m इंटू r, ये हम कह सकते हैं। तो देखो जो वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, चार्ज भी कांस्टेंट है हमारा, मास भी कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी क्या है हमारा, कांस्टेंट। मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारा, कांस्टेंट। काइनेटिक कांस्टेंट होता है हमारा, ठीक है। देखो क्वेश्चन को कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज डज नॉट चेंज, ये ट्रू, ये सही है हमारा। सेकेंड रीजन कर रहा है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नो फोर्स एक्ट ऑन द चार्ज पार्टिकल। बताओ मेरे डियर माय डियर फ्रेंड्स, क्या कोई फोर्स नहीं एक्ट करता है, क्या कोई फोर्स नहीं एक्ट करता है। अभी हमने कहा कि एक फोर्स एक्ट करता है जो इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, जो हमने कैलकुलेट किया है अभी यहाँ पर। तो ऑप्शन बी क्या है, जो हमारा स्टेट में जो रीजन है वो क्या है उसका, तो रॉन्ग है उसका। तो हम कह सकते हैं कि ये तो सही है, लेकिन जो रीजन है वो रॉन्ग है इसका, ठीक है। वी कैन से ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, वी कैन से ए इज ट्रू बट आर इज, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है सेल्फ इंडक्टेंस इज इन कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये ट्रू, सही बात होता भी है। सेकेंड कह रहा है, चलो पहले समझा देते हैं सेल्फ इंडक्टेंस क्या कहता है। देखो ये हमारा कॉइल है, हम लोग यहाँ से अगर मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं तो इसके अंदर हम लोग फील्ड को चेंज कर, सपोज उसको फ्लक्स को चेंज करवा रहे हैं। जब फ्लक्स को चेंज करवाते हैं इसके अंदर, तो ये इस चेंज को अपोज करता है, ये चेंज क्या करेगा, अपोज करेगा, और इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं हम लोग सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। इसको ये अपोज करता है, इसको लोग बैक ईएमएफ कहते हैं जो अपोजिंग है। और इसके अंदर जो प्रोड्यूस होता है, इसके जो ये इसको ये इसके कारण जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है इसके अंदर, जो इसका जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है इस कारण यहाँ पर, जो इसका ईएमएफ इंड्यूस हुआ है यहाँ पर वी कैन सी, तो यहाँ से क्या होता है कि ये जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है, वी कॉल्ड इट एज सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। ये प्रॉपर्टी कहलाता है सेल्फ इंडक्शन एंड वी रिप्रेजेंट इट बाय कांस्टेंट। ना अब यहाँ हम देखें कि क्वेश्चन कह रहा है कि क्या सेल्फ इंडक्टेंस इनर्शिया प्रॉपर्टी को शो करता है, बिल्कुल शो करता है। ये इसके चेंज को अपोज करता है, जो चेंज हो रहा है इसको अपोज करेगा बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करके। ये क्या करता है, बैक ईएमएफ इस डायरेक्शन में दूसरा एक इस तरह से करंट फ्लो करवाएगा कि उसका मैग्नेटिक फील्ड, ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड को क्या करे, अपोज करे। इन शॉर्ट ये समझ लो कि जो सेल्फ इंडक्शन के कारण ये ओरिजिनल फील्ड को अपोज कर रहा है, ये नहीं चाहता है कि के अंदर करंट आए, ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं ये इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये क्या है, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर ये इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है हमारा, तो रीजन कहता है सेल्फ इंडक्टेंस इज द फिनोमेना अकॉर्डिंग टू व्हिच an opposing induced EMF is produced in a coil and result of change in current magnetic field linked with the coil। तो कोई डिफिनेशन ही तो कह रहा है ना यहाँ पर कि सेल्फ इंडक्टेंस वह है जो जो फ्लक्स यहाँ से लिंक हो रहा है, वो जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको ये खुद ये अपोज करता है, और ये अपोजिंग टेंडेंसी जो है इसका वो क्या करता है, वो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करता है जो इसको अपोज करता है, और जिसके कारण इसके कारण क्या होता है, इसके अंदर खुद भी एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, that is called phenomena is called self inductance। तो हम ये कह सकते हैं कि assertion is true and also reason is true, we can say both are correct
and also it is correct explanation of R. That is true. Now अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिर देखो 39 क्वेश्चन ये कह रहा है कि a current flowing through a conductor is directly proportional to drift velocity। अभी हमने पढ़ रखा था, हमने पीछे किसी क्वेश्चन में आया था कि जो करंट फ्लो करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। हमने प्रूफ किया था BD = μ को हमने ओम्स लॉ को के बराबर इक्वेट करके प्रूफ किया था इसको, ठीक है। अब ये कह रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बिल्कुल होता है जी, होता है। As the drift velocity increases, the current through the conductor decreases। कह रहा है कि अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, हम जानते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू J/n, दैट मींस I/a into n। तो क्या VD बढ़ेगा तो I घटेगा? नो, ये भी बढ़ेगा। दैट मींस रीजन इज रॉन्ग। वी आर सेइंग दैट it will decrease, it will not decrease, but it will increase with drift velocity। that means ये तो हमारा सही है, मतलब assertion तो सही है हमारा, लेकिन जो रीजन दिया गया वो गलत है, स्टेटमेंट ही गलत है। ठीक है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ अ रेजिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर मेटल। देखो क्या कहता है कि एक PTC आपने पढ़ रखा हो, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, और एक होता है NTC। PTC क्या होता है कि अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर के बढ़ाने से अगर रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है या कोई भी क्वांटिटी, अगर टेम्परेचर के बढ़ाने से मान लो सर्टेन x क्वांटिटी या कुछ भी बढ़ रहा है, तो कहेंगे इसका पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेचर है। और अगर ऐसा हो रहा हो कि टेम्परेचर के बढ़ाने से वो वैल्यू घट रहा है, सपोज R घट रहा है, तो देन दैट विल कॉल्ड हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है, व्हाट इट। तो अभी कह रहा है फॉर मेटल्स, देखो जब हम बात करते हैं किसी भी मेटल्स की या हम बात करते हैं एलॉयज की, ठीक है, किसी भी कंडक्टर की जब बात कर रहे हैं तो उसका प्रॉपर्टी होता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, किसी भी कंडक्टर में क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वाइब्रेशन बढ़ने लगता है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, कोलिजन बढ़ जाता है। कोलिजन बढ़ने के कारण क्या होता है, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है हमारा उसको डिस्टर्बेंस पड़ रहा होता है, जिसके कारण जो हमारा करंट फ्लो है हमारा वो डिक्रीज कर जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेसिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है, और रेसिस्टेंस बढ़ने से टेम्परेचर क्या होता है, घटता है। ये किस में होता है, कंडक्टर में। लेकिन व्हेन यू विल लर्न अबाउट सेमीकंडक्टर चैप्टर, सेमीकंडक्टर जो सबसे लास्ट में आएगा, उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेसिस्टेंस घटने लगता है। ठीक है, लेकिन वो लास्ट में पढ़ाई होगा तो आप समझना उसको, ठीक है। इसका नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। तो लेकिन अभी क्वेश्चन कह रहा है मेटल्स और एलॉयज की। मेटल्स एलॉयज में टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा, बढ़ते जाएगा ना। क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव फॉर मेटल्स। ये ट्रू है, पॉजिटिव होता ही होता है, जब भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा हमारा। ठीक है, दूसरा कह रहा है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स एंड एलॉय इंक्रीज। ये भी सही है, कह रहा है कि टेम्परेचर बढ़ता है तो कह रहा है कि इसका पॉजिटिव जो कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है मेटल्स के लिए, और ये कह रहा है कि क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता रहता है। सोचो कंफ्यूजन थोड़ा सा यहाँ पर, क्या कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन क्या है यहाँ पर कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर